आपको इधर उधर इतना नहीं भटकना है। एंड आप एग्जाम को क्रैक करने की कोशिश करने की जगह सिर्फ नॉलेज पे फोकस ज्यादा करोगे तो एग्जाम अपने आप क्रैक हो जाएगा। एग्जामिनर क्वेश्चन डाल रहा है ये देखने के लिए कि आपको कितना आता है, एंड आप एग्जामिनर से मजे ले रहे हो क्योंकि आप क्या करते हो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन याद कर लिया आपने, कोचिंग में जो लिखा है वो याद कर लिया। तो आप एग्जामिनर से ऐसे मजे लेने की जगह अगर आप सिर्फ नॉलेज पे भी फोकस करो और जो एग्जामिनर चाहता है कि आपको नॉलेज मिल जाए उतना काम कर लो। एग्जामिनर ये चाहता है आप पे नॉलेज हो एंड आप अच्छे से पढ़ाई करके नॉलेज कलेक्ट कर लो तो भी आपका पेपर बहुत अच्छे से हो जाएगा। Hello everyone, welcome to Chamomile Tea with Toppers, an initiative by Unacademy. I am Tamanna Chaudhary, a plus educator on Unacademy. I teach physics for NEET undergraduate category, and today's guest is in fact very special because he has a lots of tricks he might share and a lots of strategies that he is very willing to put out in the universe so that you can benefit from it as well. So let us welcome Hardik Gupta. Hello Hardik. Hi Tamanna. So Hardik, कैसा फील हो रहा है? You have cracked NEET with AIR22, AIIMS with AIR18. That is a big achievement because this is a dream of so many students. क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर? I'm feeling really nice after, मतलब मेरा हमेशा से ड्रीम था। About class 10th में I started focusing on NTSC and other competitive exam, and मैंने सोचा हुआ था कि I'll give, like I have to like get into some of the best colleges, but like I was confused between maths and biology, and जब तक मैं just 11th start करा, at that time I was sure कि हाँ bio लेनी है and AIIMS में पहुंचना ही पहुंचना है। And then after this 2-year journey of preparing for NEET and AIIMS, I finally got into my dream college. So I'm feeling really good and satisfied actually. Yeah, satisfied is the word. हार्दिक, मैं सब्जेक्ट वाइज या फिर मैं बाद में जाना चाहूंगी। सबसे पहले मैं ये पूछना चाहूंगी कि जैसे यू माइट नो कि नीट और एम्स अब कंबाइन हो चुके हैं। Yes. So during your time it was not the situation. So did you prepare for it differently? मतलब क्या कोई स्ट्रैटेजी में फर्क है जब कोई एक बच्चा नीट के लिए या फिर एम्स के लिए प्रिपेयर करता है? Any difference? हाँ, there is a bit of a difference. AIIMS का पेपर काफी डिफिकल्ट होता है नीट के कंपैरिजन में, एंड डे 1 से मेरा टारगेट था कि मुझे एम्स में ही सिलेक्ट होना है, एम्स में ही जाना है। तो मैं अपना स्टडी का लेवल थोड़ा हाई रखता था। आई वाज नेवर लाइक कंसर्न कि हाँ, आई न्यू कि अगर एक बार मुझे आइडिया होगा कि एम्स के लिए मैं एक्स्ट्रा पढ़ लूंगा तो नीट साथ में कवर हो जाएगा, एंड फॉर बोर्ड्स आल्सो, नीट एंड बोर्ड सब कवर हो जाएगा। अपना एम्स के लिए high standard maintain करना है। And then about a few months into class 11th, I got excited for Olympiads, and then I started preparing for Olympiad, जिसका level aim से भी थोड़ा high रहता है। तो वो एक जो highest चीज है उसके लिए prepare करो, and नीचे वाली सारी cover हो जाती थी। So that I used to do. Okay, so yeah, I have heard that you are also like bio की जो Olympiad है national level पे, you're also a medalist of it, right? Yeah, I'm a silver medalist in International Biology Olympiad. So I represented Team India at Hungary. There is this competition where students from every country in the world, 4 लोगों की टीम आती है हर कंट्री से, and there is a proper questions and practicals, theory सारा round होते हैं, and then we won a silver medal. So I won a silver medal for India. So I was like really excited, and that is a very big achievement. Do you think it helped in your preparation for NEET or AIIMS anywhere? I think Olympiads helped me immensely. मेरा पूरा perspective change हो गया जब मैं Olympiads की preparation start करा, because Olympiads का जो level है questions का वो बहुत higher and advanced रहता है, and एक बार मैंने उसकी तैयारी करी ना तो मतलब मेरा thought process ये हो गया कि mainly हमको concept पे focus करना है and not on the answer या not on the question. मतलब examiner कुछ भी पूछ सकता है, आपको concept पता होना चाहिए। Right.
ये मेरा thought process clear हुआ, तो then this I applied this to other subjects also, and then सब में it helped me. Okay, so can I say that Olympiads for you was like AIIMS is for NEET? Because when you study for AIIMS, you're automatically preparing for NEET. Yes, हाँ ऐसे Can say extrapolate कर we can. सकते हैं. Yes. ओके, ठीक है. तो एनसीईआरटी लाइक काफी बच्चों के दिमाग में सवाल आता है, और अगेन मैं अभी सब्जेक्ट वाइज नहीं जाना चाहती हूँ, मैं बस इन जनरल पूछना चाहती हूँ, डज एनसीईआरटी रीडिंग और एनसीईआरटी सॉल्विंग रियली हेल्प्स इन क्रैकिंग दीज कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स? Yes, absolutely. मतलब कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए एनसीईआरटी इज अ मस्ट. मतलब वो मिनिमम है, एक बेयर मिनिमम है. उसके बाद जो करते हो वो अलग बात है, लेकिन एक एनसीईआरटी का बेसिक अच्छे से थॉरो नॉलेज होना, थॉरो क्लियर कंसेप्ट्स होना एनसीईआरटी के बहुत जरूरी है, काफी इंपॉर्टेंट है. एंड एनसीईआरटी इज लाइक रियली, आई कैन नॉट स्ट्रेस इट इनफ. इवन कोई भी टॉपर आके अगर इंटरव्यू देता है तो वो एनसीईआरटी से चालू होता है और एनसीईआरटी पे ही खत्म होता है. एंड मतलब सीधी बात है, मतलब एनसीईआरटी करनी ही करनी है. मतलब ओके, सो मैं एक बार पिन पॉइंट करके बस तुमसे पूछना चाहूंगी कि व्हेन यू आर सेइंग दैट एनसीईआरटी इज इम्पोर्टेंट, यू आर आल्सो रेफरिंग टू द एग्जांपल एंड एक्सरसाइज क्वेश्चंस, नॉट जस्ट द थ्योरी पार्ट, राइट? यस, आई मीन ईच एंड एवरीथिंग जो भी एनसीईआरटी में लिखा है सब कुछ इम्पोर्टेंट होता है, सबका अपना अपना वेटेज होता है, सारी चीजें रिपीट होती हैं, पेपर्स में आती हैं. एंड पेपर में आए ना है, फॉर क्लियरिंग योर ओन कॉन्सेप्ट एक स्टूडेंट को एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चंस करना मस्ट है. मतलब ठीक है. तो हार्दिक, अभी मैं लाइक थोड़ा सा सब्जेक्ट वाइज जाना चाहूंगी, एंड आई वांट यू टू टेक केयर दैट व्हेन यू आंसर तुम ये चीज का ख्याल रखोगे. अब नीट, जिपमर, एम सारे कंबाइन हो चुके हैं, और उन सबको ध्यान में रखते हुए लेट अस बिगिन दिस क्वेश्चनर. तो when now I am a physics teacher, so I'll first start with physics. Physics में what was your approach? कंसेप्ट्स क्या है, कैसे क्लियर करें ये जो बार बार जो बच्चे सवाल पूछते रहते हैं? See, I'll start from my class 10th. मैंने class 10th में class 11th की NCERT फिजिक्स की उठाई थी सबसे पहली बार. एंड सबसे पहले 11th की NCERT से ही पढ़ा था, कोई इधर उधर की बुक नहीं, कोई कोचिंग का टीचर नहीं, सिर्फ 11th की NCERT की बुक से 11th क्लास का पूरा सिलेबस क्लास 10th में एक बार पढ़ा था. एंड मतलब मुझे काफी क्लियर था, मतलब आई वाज मतलब सेटिस्फाइड कि मुझे समझ में आ गया एंड माय कॉन्सेप्ट्स आर क्लियर. And you were in class 10th? Then I was in class 10th. ठीक है. Then when I moved to class 11th, then जब 11th का start हुआ syllabus properly NEET की and AIIMS की directed तैयारी start हुई. At that time मतलब जो coaching modules में questions होते हैं, reference books में questions होते हैं, वो सब solve करना, टीचर के नोट्स एंड टीचर्स जो क्वेश्चन कराते हैं वो करना. एंड जैसे एक और मतलब ये है कि फिजिक्स को सोचना, मतलब लोग क्या करते हैं, फिजिक्स के नोट्स पढ़ते हैं या क्वेश्चन कर लेते हैं, बट फिजिक्स को सोचना और इमेजिन करना ये काम काफी लोग नहीं करते हैं. मतलब तो ऑलमोस्ट डेली बेसिस पे आधा एक घंटे बस ऐसे ही खो जाता था, बिस्तर पे लेटे लेटे सोचता रहता था कि ऐसा होगा तो कैसा होगा, और इमेजिन करता था. एंड आई फील कि इससे मेरे कॉन्सेप्ट बहुत स्ट्रांग हुए हैं. मतलब बहुत बार होता है कि फॉर्मूला ना लगा के भी अगर आप एक बार क्वेश्चन को इमेजिन कर लो तो ऑप्शन देख के आप टिक कर सकते हो, एंड आप नहीं करना पड़ता. तो फिजिक्स को सोचना भी एक मतलब आर्ट है, मतलब ये भी डेवलप करनी चाहिए लोगों को, खाली बैठे बैठे तो इमेजिन करना, तो दैट रियली हेल्प्स इन फिजिक्स. कुछ ऐसा था कि आज एक दिन में मुझे इतने क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, या फिर एक दिन में मुझे सिर्फ ये चैप्टर करना है, या फिर रैंडमली यू यूज्ड टू गो विद द फ्लो? नहीं, ऐसा कभी नहीं हुआ कि मुझे आज इतने क्वेश्चन करने हैं. अगर कुछ होमवर्क मिला है कहीं से, एज एन कोचिंग से, स्कूल से, कि इतना करना है, तो दैट इज अ डिफरेंट थिंग. बट अदरवाइज कभी मैं ऐसे नहीं बैठा कि इतने क्वेश्चन करने हैं. समटाइम्स आई यूज्ड टू चैलेंज माई सेल्फ कि हाँ 20 मिनट में 30 क्वेश्चन करने ही करने हैं, एंड देन स्पीड में कर रहा हूँ. दैट इज रैंडमली कभी चैलेंज करता था तो बात अलग है, बट डेली बेसिस पे कभी भी मैंने इतनी क्वेश्चन सॉल्विंग नहीं करी. टुवर्ड्स द एंड ऑफ लाइक जब नीट पास आ रहा था, एट दैट टाइम ठीक है मैं करता था, बट ड्यूरिंग माय कोर्स ऑफ 11th एंड 12th उसमें मेनली मैंने इतने क्वेश्चंस नहीं करे, एंड रादर मैं थ्योरी एंड कॉन्सेप्ट पे ज्यादा फोकस करता था.
में एक एडवांटेज ये भी रहता था कि बिकॉज मेरे मार्क्स स्टार्टिंग से थोड़े ज्यादा आते थे टेस्ट में, तो काफी ऑफ स्टूडेंट कोर्स यू स्टार्टेड फ्रॉम 10th कैसे नहीं आएंगे? बट देन काफी स्टूडेंट्स मेरे पास डाउट्स लेके आते थे, तो बिकॉज ऑफ दोस डाउट्स इट रियली हेल्प मी। मतलब स्टूडेंट वही डाउट लाएगा जो उस दिन या एक दो दिन पहले क्लास में पढ़ाया है, एंड जब लेके आते थे तो मेरा ऑटोमेटिकली रिवीजन हो जाता था। तो मतलब ये दिस हैज बीन एन इंटीग्रल पार्ट कि लोगों के डाउट सॉल्व करने से मेरा काफी ज्यादा मुझे फायदा हुआ है, बिकॉज उससे रिवीजन होता था, डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते थे, और चार लोग चार अलग अलग किताबें सॉल्व करते हैं, तो सबके डाउट सॉल्व करने में मेरी 4-5 किताबें कवर हो जाती थी। Like it is said, the best way to learn is to teach. हाँ। So you did that. तो हर जैसे कि you have cracked NEET, you have cracked AIIMS and that too with wonderful rank. मैं तुमसे ये पूछना चाहूंगी, फिजिक्स तुम्हें पता है एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है एंड टाइम लगता है. इफ आई कंपेयर इट विद अदर टू सब्जेक्ट्स, इट टेक्स टाइम बिकॉज यू हैव टू थिंक, यू कैन नॉट इंस्टेंटेनियसली नो व्हाट द एग्जामिनर इज आस्किंग, राइट? तो ये जो टाइम बिल्ड है तुमने शुरू से ही शुरू कर दिया, मतलब शुरू से ही यू वर फोकस्ड कि आई हैव टू टेक केयर ऑफ द टाइम दैट आई एम सॉल्विंग द क्वेश्चंस इन, या लास्ट में जाके जब तुमने PYQs वगैरह शुरू किए? When did this thought come that time management is important for physics? फिजिक्स एक्चुअली बायोकेमिस्ट्री से थोड़ी सी डिफरेंट है इस वे में कि अगर आपको एक बार फिजिक्स आपने इनिशियली उसमें इन्वेस्टमेंट कर दी, अच्छे से टाइम देके समझ लिया, देन आपको वो बाद में इतनी रिवाइज नहीं करनी पड़ती। फॉर एग्जाम्पल जो बेसिक्स है, मैकेनिक्स का पार्ट भी ले लो, स्टार्ट 11th का ऑलमोस्ट ज्यादातर पार्ट मैकेनिक्स का होता है, अगर आप उसको टाइम देके समझ लो तो आई डोंट सपोज कि किसी को मैकेनिक्स रिवाइज करने की जरूरत है। मतलब इट इज अ वेरी बेसिक फंडामेंटल थिंग। और बायो बिल्कुल इसके ऑपोजिट है, सबसे फंडामेंटल चीज भी आपको पेपर से पहले एक बार रिवाइज करनी ही पड़ेगी, वरना आप पेपर में भूल सकते हो, कंफ्यूज हो सकते हो। तो स्टार्टिंग में आई सजेस्ट कि स्टूडेंट्स फिजिक्स एंड फिजिकल केमिस्ट्री पे ज्यादा कॉन्सेंट्रेट करें, स्पेशली मैकेनिक्स एंड जो फंडामेंटल चैप्टर्स हैं मैकेनिक्स या केमिस्ट्री में मोल वगैरह, या जो फंडामेंटल चीजें हैं उनको पूरा टाइम दें। बच्चे जनरली क्या करते हैं कि मैकेनिक्स जल्दी से करेंगे, 12th भी से स्टार्ट कर देंगे, भागने की कोशिश नहीं है। अगर आप एक साल देके, 1-1.5 साल देख के भी अच्छे से अगर फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कर लोगे तो लास्ट के चैप्टर्स बहुत जल्दी से निकल जाते हैं, एंड टाइम भी बचता है क्योंकि रिवीजन बाद में नहीं करना पड़ता है। ओके, तो जैसे अगर कल एग्जाम है, लेट अस सपोज कि tomorrow is the day when you are going to appear for NEET, आज के दिन what would you have been doing when it comes to physics? क्योंकि तुमने कहा बायो के लिए it is very important to revise even a day before, but what about physics? How do one revise physics? हाँ, तो फिजिक्स में देखो मैंने मैंने पर्सनली क्या करा था, फिजिक्स में कुछ चैप्टर्स होते हैं जो ज्यादा रिवीजन मांगते हैं बिकॉज उनके कॉन्सेप्ट, मतलब उनके डेरिवेशन आपको नहीं बताए होते हैं, लाइक सेमीकंडक्टर्स, एसी, EM वेव, डेरिवेशंस आपको नहीं पता होते हैं, इनके आपको फॉर्मूलाज याद करने ही पड़ते हैं। तो उस टाइप के चैप्टर्स को मैंने रिवाइज करा था। मैकेनिक्स, ग्रेविटेशन, जो बिल्कुल बेसिक्स चैप्टर हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इनको इतना रिवाइज नहीं करा था मैंने। मैं मोस्टली इनऑर्गेनिक और बायोलॉजी ही रिवाइज कर रहा था। मैंने एक शॉर्ट नोट्स की बुक बनाई हुई थी। मतलब आई हैड लाइक हर चीज की मैंने शॉर्ट नोट्स कंपाइल कर रखे थे। लाइक आई विल एक्सप्लेन, एक एक सब्जेक्ट वाइज मैं बताता हूँ। तो बायोलॉजी में एक मेरे पास छोटी सी नोटबुक थी जिसमें मैंने हर चैप्टर के बिल्कुल वो वाले पॉइंट्स जो मैं बार बार भूलता था वो लिख के रखे थे। तो वो 100 पेज की नोटबुक थी, वो पूरी बन के तैयार हो चुकी थी नीट से 1-8 महीने पहले करीब तक। तो लास्ट के डेज में उसको रिवाइज कर लिया, और एग्जाम से एक दिन पहले भी मैं 2 घंटे में करीब पूरी वो बुक रिवाइज कर पाया था बहुत आराम से। अब फिजिक्स के रिवीजन के लिए आई हैड दिस कॉन्सेप्ट इन माई माइंड कि मैं हर चैप्टर के एंड में उस चैप्टर को समराइज करता था, जितने भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज होते थे वो मैं हर चैप्टर के एंड में लिखता था, या फिर कॉपी के लास्ट के पेज से लिखना चालू करता था। तो मैं 300-400 पेज का रजिस्टर बहुत आराम से 20 पेज में समराइज हो जाता था। एंड साल के एंड तक मेरे मतलब 10-15 कोचिंग के रजिस्टर हो गए होंगे फिजिक्स के, एंड देन 10-15 रजिस्टर से मतलब अराउंड 200 पेज के शॉर्ट नोट्स बन गए। 200 पेजेस नॉट शॉर्ट, बट कंसिडरिंग के 15 रजिस्टर हैं तो 200 पेज में क्वेश्चन, सारे फॉर्मूलाज, मतलब बहुत डिटेल्ड थे वो मतलब बिल्कुल शॉर्ट नोट्स नहीं थे।
इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो ज्यादा बार रिपीट हुए हैं उनके डायरेक्ट आंसर भी लिख रखे थे. मेमोरी मैप जैसे यू कैन से. हाँ एग्जैक्टली मतलब सारे मतलब उनको शॉर्ट करके लिखा और उसको कभी रिवाइज करना है तो उसको ही देख लिया. तो ये एक तरीका है जिससे फिजिक्स को जल्दी रिवाइज करा जा सकता है. आई फाउंड इट वेरी बेनिफिशियल. Okay, ladies and gentlemen, हमारे Indian Sherlock Holmes, he created a very good, mind chart to know what is important at the last moment. So I would suggest all of the learners to, follow these strategies that Hardik is talking about, implement them, and, improvise your preparation journey altogether. फिजिक्स की वजह से अब आपका सिलेक्शन नहीं रुकना चाहिए. मैं इंश्योर करूंगी कि आप फिजिक्स को सिर्फ पढ़ें या समझें नहीं, लेकिन उसको एंजॉय भी करें. चाहे फिजिक्स का कोई भी टॉपिक हो, मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स में से केसेस को उठा के कंसेप्ट क्लियर करती हूँ, ताकि आपको कभी भी कोई भी फॉर्मूला याद करने की ज़रूरत ना पड़े. जिन क्वेश्चंस को आप 2 मिनट में सॉल्व करते हैं, अब आप उनको आधे टाइम में कर पाओगे. एक वक्त पे मैं भी फिजिक्स में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करती थी. फिर प्रैक्टिस के साथ मुझे कॉम्प्लेक्स चीज़ों को सिंप्लीफाई करने की अपनी एबिलिटी रियलाइज हुई. मैं चाहती हूँ कि आप भी फिजिक्स को उसी नज़रिए से देख पाएँ जिस नज़रिए से मैं देखती हूँ. मैं अपने कोर्सेज में थियरी से ज़्यादा एप्लीकेशंस पे फोकस करती हूँ, ताकि आपको प्रॉब्लम सॉल्व करते हुए और कॉन्फिडेंस आए और फिजिक्स आपको और दिलचस्प लगने लगे. मैं आपको नीट एग्ज़ाम के प्रिपरेशन जर्नी में पूरा सपोर्ट करूँगी, एज अ टीचर, एज अ मेंटर एंड एज अ फ्रेंड. मेरा नाम है तमन्ना चौधरी. मैं पढ़ाती हूँ फिज़िक्स प्री मेडिकल एग्ज़ाम्स के लिए. अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड कीजिए और मुझे वहाँ फॉलो कीजिए. Now, if I talk about bio, so bio is full of examples. If I even talk about plant kingdom, there are so many examples. It just terrifies. I am terrified by the thought of so many examples. How did you manage to learn each one of them and not get confused? बायो को रिवाइज करने के लाइक 2-3 टेक्निक्स हैं जो आई फाउंड आउट. वन इज रिपीटेड रिवीजन, बार बार किसी चीज को रीड करना. देन सेकेंडली इज लाइक एक्टिवली रिवाइज करना. एक्टिवली रिवाइज करना मीन्स कि आप सोचो, एफर्ट डाल के सोचो कि वो चीज क्या थी. लाइक फॉर एग्जाम्पल फॉर मी, जब भी मैं कोचिंग जाता था तो रास्ते में इमेजिन करता था कि इसके एग्जाम्पल क्या थे, कल टीचर ने क्या पढ़ाया था, एंड उसको सोचता था, एक्टिवली रिवाइज करता था, एंड कुछ भूलता था तो कोचिंग पहुंच के एक बार बुक में देख लेता था. तो जब आप अपने दिमाग पे जोर डाल के रिवाइज करते हो ना इस तरीके से, तो वो चीज हमेशा याद रहती है. एंड इवन रिवीजन करते टाइम जब आप बुक से रिवाइज करते हो, तो वन मोर थिंग यू कैन लुक अप टू इज कि आप ये देखो कि वो चीज कहाँ लिखी है. मतलब दिस में सीम की अजीब बात है, बट मतलब ऑलमोस्ट 2 इयर्स के एंड तक मुझे पेज नंबर भी याद हो गए थे. अगर कोई मेरे से लाइन पूछता तो मैं पेज नंबर बता सकता था कि इस पेज पे यहाँ लिखा हुआ है. एंड एक्टिवली इमेजिन करने से भी बहुत फर्क पड़ता है. अगर आपको पता है कि वो चीज कहाँ लिखी है, उस बुक के उस कॉर्नर पे लिखी है, बीच में लिखी है, नीचे लिखी है, तो आप कंफ्यूज कम होते हो. आप इमेजिन कर सकते हो कि वो पेज कैसा दिखता था, एंड देन जब इमेजिन करोगे तो कंफ्यूजन काफी कम होता है. ये एग्जाम सिनेरियो में बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब नीट में आप पेपर दे रहे होते हो और आप पे प्रेशर होता है, उस टाइम पे सिली मिस्टेक्स के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं. तो उस टाइम पे ये टेक्निक्स बहुत काम आती हैं. Okay, so you were preparing for AIIMS as well as NEET. Agar by chance, if I imagine you were not preparing for AIIMS, so would you have, studied anything or any example which was not given inside the NCERT? अगर AIIMS को साइड में हटाएं. मतलब इसके 2 आंसर्स हैं. आई थिंक मैं पर्सनली करता, बिकॉज मैं काफी जिद्दी हूँ इस मामले में. आई एम लाइक मुझे सब कुछ पढ़ना है, भले ही नहीं हो. एंड एक्चुअली मैं सोचूं तो मैंने जितना पढ़ा था उसमें अराउंड 70% काम का नहीं भी था. बट आई कुड डू दैट बिकॉज आई स्टार्टेड अर्ली, सो आई कुड अफोर्ड दैट. मैं अपना टाइम कर सकता था बिकॉज मैंने पहले का टाइम इन्वेस्ट करा हुआ था. बट अगर मैं स्टूडेंट्स को बोलूं जो लोग या तो 11th से स्टार्ट कर रहे हैं या ड्रॉप करके कर रहे हैं, तो आई वुड नॉट सजेस्ट कि आप ज्यादा इधर उधर भटको, एंड मे बी फोकस मोर ऑन द कॉन्सेप्ट्स एंड मोर ऑन द थिंग्स गिवन इन द एनसीईआरटी rather than
कुछ भी पढ़ने से. But if you are 9th or 10th and wanting to start early, you can always do that. हार्दिक, ऐसा भी कोई सीन होता है ओल्ड एनसीईआरटी न्यू एनसीईआरटी का कि ओल्ड एनसीईआरटी में जो एग्जांपल्स गिवन है ज्यादा अच्छे हैं तो वो खरीदो? जो ओल्ड एनसीईआरटी है उसमें काफी ज्यादा एग्जांपल्स दिए हुए हैं, बट ओल्ड एनसीईआरटी की प्रॉब्लम मतलब एक्चुअली ये मैं आपको बात बताता हूँ, जो कोचिंग अकेडमीज होती हैं उनकी एक तरीके से ट्रिक ही होती है. जो उनके मॉड्यूल्स में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन होती है ना, उसमें ज्यादातर चीजें आप देखोगे तो वो पुरानी एनसीईआरटी को ही लिख के डाल देते हैं, बिकॉज जनरली ये होता है कि अगर एग्जामिनर को आउट ऑफ एनसीईआरटी क्वेश्चन बनाना है तो वो पुरानी एनसीईआरटी से बना देता है, बिकॉज इज आल्सो अ क्रेडिबल सोर्स. बट पुरानी एनसीईआरटी रीड करना इज नॉट लाइक, मैं इतना सजेस्ट नहीं करूंगा, बिकॉज वो इतनी मतलब बहुत छोटी नहीं है. अपनी करंट एनसीईआरटी काफी कंसाइज है, बहुत बड़ी है, एंड जनरली कोचिंग मॉड्यूल्स में उसको फिल्टर आउट करके लिखते हैं जो उसमें से इम्पोर्टेंट है, तो वो उतना ठीक रहता है. बट पूरी रीड करना वुड बी अ रियली कम्बरसम टास्क. ओके, अगर मैं उन बच्चों की बात करूं जो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स नहीं जा रहे हैं, तो उनके लिए दैट इज द ओनली सोर्स ऑफ, और वुड यू सजेस्ट देम टू बाय सम अदर मटेरियल रादर देन द ओल्ड एनसीईआरटी? इसके लिए लाइक एक बेसिक मतलब टेक्निक हमको यूज करनी है, विच इज लाइक जैसे हम बोलते हैं रीडिंग बिटवीन द लाइंस, ये वर्ड फ्रेज काफी यूज करते हैं. तो लाइक आई वुड सजेस्ट कि जब भी आप कोई चीज पढ़ रहे हो उसके बारे में इंटरनेट पे थोड़ा सा और ढूंढ लो, ठीक है. इंटरनेट इज अ वेरी गुड फ्रेंड. मतलब लोग अपने मोबाइल वगैरह सब त्याग देते हैं 2 साल के लिए कि हम लोग नोकिया का छोटा फोन ले लेंगे एंड बिल्कुल मीडिया नहीं, सब कुछ बंद. लेकिन दे आर कॉम्प्रोमाइजिंग ऑन अ वेरी गुड सोर्स विच इज द इंटरनेट. काफी सारे लोग नॉर्मल स्टडी टाइम में अपने बगल में फोन नहीं रखते हैं, बट मेरे पास अपने 2 साल प्रिपरेशन के लिए मैंने एक टैबलेट खरीदा हुआ था, एंड वो टैबलेट हमेशा मेरी बुक्स के साथ खुला रहता था, एंड मैं एक लाइन पढ़ता था और एक लाइन सर्च करता था, एंड उसके बारे में थोड़ी सी और इन्फॉर्मेशन पढ़ता था. तो एनसीईआरटी की 5 लाइन पढ़ता था तो इंटरनेट पे उसके बारे में 15-20 लाइन पढ़ लेता था. तो इस तरीके से हर पॉइंट के बारे में मुझे थोड़ा सा ज्यादा पता होता था. एंड अगर एग्जामिनर को आउट ऑफ एनसीईआरटी क्वेश्चन बनाना है ना, तो वो जो पॉइंट उठाएगा वो एनसीईआरटी से ही उठाएगा. तो वो एनसीईआरटी की एक लाइन के थोड़ा इधर उधर ही जाएगा. तो मोस्टली ऐसे करने से बहुत कवर होता है. अगर किसी स्टूडेंट पे कोचिंग का एक्सेस नहीं है, रेफरेंस बुक्स का एक्सेस नहीं है, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा, तो जो एनसीईआरटी में लिखा है उसका थोड़ा इधर उधर सर्च करो, नेट पे पढ़ लो, तो उससे काफी कुछ कवर हो जाता है. आई एम वेरी श्योर कि जितने भी व्यूअर्स अभी हमें देख पा रहे हैं, they will be very happy to know this information, because this is very extremely helpful, क्योंकि बच्चों को ये नहीं समझ आता है कि हम पढ़े कहाँ से, so you made that very clear for each one of them. Thank you very much, Hardik. तो like you, जैसे कि तुमने बताया कि फिजिक्स के लिए you had some short notes, right? Did you have the same for biology, or how did you manage the last time preparation? फॉर बायोलॉजी मैं जब लाइक फिजिक्स मैंने जल्दी स्टार्ट कर ली थी, बायोलॉजी और ज्यादा जल्दी स्टार्ट हो गई थी. मतलब बाय द टाइम मतलब थोड़ा सा ठीक है, मतलब व्यूअर्स को अजीब लगेगा कि मतलब इनने तो पहले ही कर लिया, अब हम कैसे करें, बट मतलब मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, एंड देन आई कैन ऑलवेज कोरिलेट. देखो, ओलंपियाड में हमेशा से इंटरेस्ट था, एंड ओलंपियाड वाज 6 months after the first, मतलब I gave Olympiad in both class 11th and class 12. Okay. दोनों टाइम क्वालिफाई हुआ था. तो when I was in class 11th, वो मेरे क्लास 11th के 6 months बाद ही था, एंड उसमें पूरा 12 तक का बायो का सिलेबस आता है. तो I made it like my मतलब एक ओनली टारगेट कि मुझे खत्म करनी है बायो. तो बाय द टाइम 11th क्लास 6 months निकली थी, मेरा बायोलॉजी पूरा खत्म हो गया था. तो फॉर दैट I referred only 12th का पूरा बायोलॉजी खत्म हो गया था. And for that I used only NCERT, and सिर्फ NCERT से मेरे बायोलॉजी ओलंपियाड के मतलब मैं इंटरनेशनल टीम में नहीं था, बट उससे पहले के सारे स्टेजेस सिर्फ NCERT से क्लियर हुए थे. NCERT से इट में सीम रियली शॉकिंग, बट इसका ओनली रीजन है रीडिंग बिटवीन द लाइंस. एक लाइन पढ़ो, 10 लाइन ढूंढो, एंड सिर्फ इतना करने से ओलंपियाड का लास्ट स्टेज तक मैं पहुंच गया था, विच इज बेसिकली जिसमें काफी बुक से क्वेश्चंस आते हैं, बट स्टिल सिर्फ एनसीईआरटी से कवर हुआ था. तो
एक मेरी टेक्निक रहती है कि एनसीईआरटी में जनरली आधा पेज ही लिखा होता है, बायो के एनसीईआरटी में आधा पेज बिल्कुल खाली व्हाइट छूटा होता है और होता है, तो मैं आधे पेज में फ्लो चार्ट्स एंड शॉर्ट नोट्स पूरे पेज के साथ साथ बनाते हुए चलता था। तो इससे पूरे कॉन्सेप्ट मेरे साथ साथ में क्लियर होते रहते थे। जो भी यहाँ एक लाइन लिखी है या 5 लाइन लिखी है उसको शॉर्ट में करके या एक फ्लो चार्ट बना के मैं बगल में लिख लेता था, एंड उससे रिवीजन में काफी हेल्प मिलता था और कुछ सर्च करने में भी बहुत हेल्प मिलती थी। आप कभी भूल रहे हो कि मुझे एक एग्जाम्पल रिवाइज करना है तो आपको ढूंढना नहीं पड़ता था, आपको साइड में लिखा हुआ मिल जाता था। तो टेक्निक जिससे आप एनसीईआरटी को समराइज कर सकते हो। दिस वाज स्टेज 1। देन मतलब मेरे नोट्स ऑलमोस्ट 3 लेयर्स में थे, बट मैं बताता, मतलब इट मे सीम के थोड़ा मतलब डरावना लग सकता है कि इतने नोट्स कौन बनाएगा, बट एक्चुअली स्पीकिंग 2 years इज अ लॉट ऑफ टाइम। अगर आप ढंग से करोगे तो 2 साल लंबा टाइम होता है, जिसमें 2 साल के बीच में भी यू कैन इवन टेक ब्रेक्स, यू कैन गो टू लाइक फैमिली के साथ हॉलीडे पे भी जा सकते हो, एंड इस सब के बीच में भी यू गेट अ लॉट ऑफ टाइम। तो मेरे 3 लेयर्स में नोट्स थे, एक एनसीईआरटी के बगल में जो मैंने फर्स्ट रीडिंग में बनाए, देन जब कोचिंग में पढ़ा तो कोचिंग के नोट्स, देन उसको भी शॉर्ट करके एक शॉर्ट नोट्स की डायरी थी जो नीट से पहले मैंने रिवीजन के लिए रखी थी। तो देखो नोट्स बनाने का मतलब ये एक चीज मैं व्यूअर्स को समझाना चाहता हूँ, नोट्स की वैल्यू उनको पढ़ने से नहीं है, नोट्स की वैल्यू उनको बनाने से है। ठीक है, सब लोग मतलब मुझे कम से कम आज के 1 साल में 1000 स्टूडेंट्स ने कांटेक्ट करा है कि अपने शॉर्ट नोट्स दे दो, ये दे दो, वो दे दो। मैं उनको समझा के परेशान हो गया कि मेरे नोट्स पढ़ के तुम कहीं नहीं पहुंच पाओगे। आज When तक I say it, Hardik, nobody believes, but I want this to go out in the universe and students needs to hear this. Go on. मतलब एग्जैक्टली आपको एक भी टॉपर नहीं मिलेगा जो आपको ये बोले कि मैंने किसी और टॉपर के नोट्स पढ़ के मैं कर गया। आप जब आप खुद नोट्स बनाते हो तो आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं, आपके दिमाग में पूरा जो क्लटर हो चुका होता है ना चैप्टर, वो लाइन से अरेंज होता है एंड सारे टॉपिक्स आपस में कोरिलेट होते हैं। तो नोट्स बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरे इतने सारे नोट्स इसलिए हैं क्योंकि मैंने शायद ये नोट्स पढ़े 1-2 बार ही होंगे। जो फाइनल शॉर्ट नोट्स थे वो मैंने मतलब ज्यादा पढ़े, बट बीच के 3-4 लेयर के नोट्स मैंने पढ़े भी नहीं। मतलब एक कोचिंग के नोट्स तो मैं ऑलमोस्ट 1-2 चैप्टर्स तो मैंने बिल्कुल छुए भी नहीं, क्लास में बना के देखे भी नहीं। बट जो काम है नोट्स बनाने का वो है कि आप नोट्स बनाओ और दिमाग में सीखो। तो नोट्स बनाने का ये फंक्शन मैं ज्यादा इंपॉर्टेंट मानता हूँ। मेकिंग ऑफ नोट्स इज मोर इम्पोर्टेंट देन स्टडीइंग नोट्स। इसलिए आई हाईली मतलब डिस्करेज पीपल फ्रॉम टेकिंग किसी और के नोट्स। खुद से बनाओ, किसी और के लेके कोई फायदा नहीं है। ठीक है, तो अगर मैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करूं तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री बायो मतलब थोड़ा सा हो जाता है ना कि बहुत सारे एग्जांपल्स है, सेम थिंग यू यूज्ड टू डू देयर एज वेल। बायोलॉजी का सिलेबस आप देखो तो देखो इनऑर्गेनिक की वेटेज 15 मार्क्स है एंड बायोलॉजी की वेटेज 90 मार्क्स है। राइट। तो इससे ही पता चलता है कि इनऑर्गेनिक है मुश्किल, ज्यादा याद करना है, बट उसका सिलेबस बायो से बहुत कम है। ठीक है, तो मेरा तो ये था कि जो मेरा बाथरूम था उसके बाहर मैंने एक चार्ट पेपर चिपका रखा था एंड उस पे 2 साल के सिलेबस की पूरी इनऑर्गेनिक लिख ली थी। धीमे धीमे लिखी थी। अराउंड 5-6 महीने आफ्टर माई स्टार्टिंग ऑफ 11th मुझे ये आइडिया आया था एंड तब से लिखना स्टार्ट करा था एंड अराउंड 12th के एंड तक वो पूरा कंप्लीट हो पाया था। बट उस एक चार्ट पेपर में पूरी 2 साल की इनऑर्गेनिक अच्छे से लिखी हुई थी, सारे पॉइंट्स थे एंड वो बाथरूम के बाहर था, तो दिन में 15 बार तो दिख ही जाता था। जब तो भी वो एनीवेयर डोर था टू एम्स। हाँ आप कह सकते हो। मतलब इनऑर्गेनिक में उससे मतलब बहुत फायदा होता था एंड मतलब अराउंड द एंड ऑफ द एग्जाम मेरे साथ मेरे फ्रेंड्स को भी काफी रियलाइज हुआ। तो जब भी हम लोग टेस्ट देने जाते थे तो टेस्ट की सुबह मेरे रूम में भीड़ लग रही होती थी, सब लोग आके मेरे बाथरूम के बाहर खड़े होके कर रहे होते थे इनऑर्गेनिक का चार्ट, बिकॉज उसमें बहुत अच्छे से रिवीजन हो रहा होता था। तो इट इज समथिंग मतलब चार्ट पेपर पे मतलब मैं सजेस्ट कर रहा हूँ कि बायो को एक कॉपी पे बनाओ, बिकॉज बायो ज्यादा इनऑर्गेनिक बहुत कम है। अगर आप उसे एक चार्ट पेपर पे लिख के दीवार पे चिपका दोगे ना तो आपको होगा कि बहुत कम है, आपको टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि आपको दिख रहा है कि इतनी ही है हो गया। तो एनसीईआरटी तक रहे तो चलेगा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए? एनसीईआरटी तक आपने एनसीईआरटी अगर किसी बच्चे ने इनऑर्गेनिक की कर ली है ना तो बहुत बड़ी बात है, बिकॉज एनसीईआरटी बहुत ज्यादा डिटेल्ड है, बहुत ज्यादा डीप है। इवन इनऑर्गेनिक की तो पूरी एनसीईआरटी ढंग से याद मतलब
आई डू नॉट मीन रीड करना, आई मीन ढंग से पता होना, कुछ भी हर चीज पता होना। वो छोटे छोटे टेबल्स भी जो बीच में दिए टेबल्स होते भी, हैं। मतलब फॉर एम्स इट वाज इम्पोर्टेंट, नीट के लिए नहीं। तो आई डोंट थिंक कि अब वो इतनी इंपॉर्टेंट होंगी, बट मैंने अपने टाइम में मतलब पूरा डेटा, सारे मेल्टिंग पॉइंट, सारे एलिमेंट्स का ये वो डेंसिटी सब कुछ याद करा था। तो वो बहुत ज्यादा, मतलब वो सब भी एक चार्ट पेपर पे फिट हो गया था। मतलब इतना 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 नहीं है इनऑर्गेनिक, वो सब पता होना बहुत मुश्किल है। तो एनसीईआरटी की मतलब थॉरो रीडिंग इम्पॉर्टेंट है। एंड इनऑर्गेनिक में एक चीज स्टूडेंट्स भूल जाते हैं, वो याद करने पे इतना फोकस ज्यादा करते हैं एज कम्पेयर टू मेकिंग रिलेशंस एंड मेकिंग ऑर्डर्स। इनऑर्गेनिक में आप, अगर आपसे क्वेश्चन आ रहा है कि बताओ किस एलिमेंट का साइज सबसे बड़ा है, तो दैट डज नॉट मीन कि आपको सबके साइज याद होने चाहिए। दैट मीन्स आपको बस ये पता होना चाहिए कौन सा सबसे बड़ा है, यही क्वेश्चन है, कौन सा है। नहीं पूछा है। तो सिमिलरली फॉर एवरीथिंग, अगर आपको हर चीज के ऑर्डर्स पता है, रिलेशंस पता है, उतना काफी है। बिल्कुल डेटा डॉट तक याद होना जरूरी नहीं है। ओके और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए व्हाट डिड यू यूज टू डू, क्योंकि यहाँ से तो कोई भी रिएक्शन कैसे भी रैंडमली आ जाएगा, तो हाउ कैन अ स्टूडेंट प्रिपेयर? Organic chemistry is closer to physics and maths than it is closer to inorganic and biology. I मतलब wanted to make sure you say that. Yes, go मतलब on. इसमें इतना याद, मतलब रिएक्शन कुछ भी आए फिजिक्स के क्वेश्चन की तरह है, नंबर चेंज हो जाए तो क्या क्वेश्चन सॉल्व नहीं करोगे क्या? बच्चे डर जाते हैं कि यार इसमें मतलब पोटेशियम के सॉल्ट की जगह सोडियम का सॉल्ट है, हमको नहीं आता। अरे तुम कर लो, सेम ही चीज है, नंबर चेंज हुआ है कोई बात नहीं। फिजिक्स में नंबर चेंज हुआ है, वैसे इनऑर्गेनिक में थोड़ा सा कंपाउंड चेंज हुआ है, बट यू शुड सी अ जनरल कोरिलेशन कि वो एक रिएक्शन का पार्ट है, ये रिएजेंट्स है, यही रिएक्शन होनी है। इलेक्ट्रोफाइल, न्यूक्लियोफाइल, दो वर्ड में इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक खत्म हो जाती है पूरी। बस आपको पता होना चाहिए कि क्या क्या आप कर सकते हो, और एक कॉन्फिडेंस होना चाहिए, एक बेसिक लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस होना चाहिए। अगर आपको कॉन्फिडेंस नहीं है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, तो आपको हमेशा ये डर लगेगा कि कुछ एक्सेप्शन हो सकता है। लेकिन अगर आपको कॉन्फिडेंस है तो आप झट से रिएक्शन बना दोगे। Okay. के लिए व्हाट आई डिड, एंड आई थिंक इट इज अ वेरी वेरी गुड थिंग। मतलब ये चीज मेरे टीचर ने मतलब अराउंड 4-5 मंथ्स बिफोर नीट मुझे बताया था कि मेक अ बैंक फॉर ऑर्गेनिक। तो एक कॉपी में जितने रिएक्शन तुम्हारी कोचिंग की नोटबुक में लिखे हैं, या जितने भी रिएक्शन तुम्हें मिल रहे हैं, उनको बिना आंसर लिखे लिख लो। इनिशियल सबस्ट्रेट लिख लो, एरो बना के खाली छोड़ दो, और आंसर मेंशन नहीं करो। ऐसे करके मतलब 1-2 हफ्ते में वो पूरी कॉपी तैयार हो गई थी मेरी। एंड जब भी रिवीजन करना है तो उस कॉपी में देख लो, और जो जो रिएक्शन तुम कर पा रहे हो उन पे टिक लगा दो, जो नहीं कर पा रहे हो उनको सर्कल कर लो और उनको ज्यादा रिवाइज करो। आंसर वहां मत लिखो। अगर आपको नहीं आ रहा है तो वो पूरा टॉपिक, वो पूरा मैकेनिज्म वापस से जाके रिवाइज करो, और आंसर मत देखो, वापस से फिर उस क्वेश्चन को सॉल्व करो। तो Brilliant. तो इस तरीके से आई यूज्ड टू डू ऑर्गेनिक। एंड ये क्वेश्चन बैंक बनाने से काफी फायदा होता है, बिकॉज एक बार आपने क्वेश्चन बैंक बना ली, एंड जो क्वेश्चंस आपको आते हैं आपने उस पर टिक लगा दिया, तो नीट से 1-2 दिन पहले तक मतलब मुश्किल से 30-40 क्वेश्चन बचेंगे जो आपको डाउटफुल होते हैं। तो 30-40 क्वेश्चन रिवाइज करने में एक दिन पहले आपको आधा घंटे से ज्यादा नहीं लगेगा, और आधा घंटे में आपके 15 क्वेश्चन सिक्योर हो जाएंगे बहुत आराम से। Okay. और फिजिकल केमिस्ट्री में क्या अप्रोच था? फिजिकल केमिस्ट्री में कोई मतलब कुछ भी अप्रोच नहीं था, बिकॉज आई फील कि फिजिकल केमिस्ट्री सारे सब्जेक्ट्स में सबसे बेसिक, सबसे easy है। मतलब उसमें ज्यादा कुछ होता नहीं है, ज्यादा फॉर्मूलाज डिराइव नहीं करने पड़ते, बेसिक कॉन्सेप्ट से डिराइव हो जाते हैं। एंड नीट में क्वेश्चन भी बहुत इजी आते हैं, इवन एम्स में भी इजी आते थे। फिजिकल केमिस्ट्री जनरली इजी रहती थी। Okay. तो केमिस्ट्री में मैंने ऐसा कुछ नहीं करा, कोई क्वेश्चन बैंक, कोई प्रैक्टिस, कुछ भी नहीं। कोचिंग का मॉड्यूल थोड़ा बहुत, एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ ली, नोट्स बना लिए, नोट्स देख लिए, बस इतना ही करा। फिजिकल केमिस्ट्री में नथिंग स्पेशल। Okay. एम्स में अब तो एम्स होता नहीं है, लेकिन अभी जब तक एम्स हो रहा था कोई ऐसी कैटेगरी थी, मतलब तीनों सब्जेक्ट्स में से कौन सा सब्जेक्ट यू विल पिक कि यहाँ से क्वेश्चंस काफी ज्यादा टफ आए हैं इन कंपैरिजन टू नीट? ऑब्वियसली इसका आंसर फिजिक्स ही है। आई थिंक फिजिक्स का जो पेपर आता था एम्स में वो सबसे डिफिकल्ट आता था, बट देन वो सबसे मजेदार आता था। मतलब अगर कोई बच्चा अच्छे मार्क्स ला रहा है नीट में, तो उसको मजा वो फिजिक्स करके ही आता था। मतलब मुझे तो एक जो
बोलते हैं ना, मतलब एक एडवेंचरस सी फीलिंग, एक्साइटमेंट, वो ब्यूटीफुल सब्जेक्ट। वही चीज करने में आती थी कि वो एम्स के वो डिफिकल्ट क्वेश्चंस करने में ही मुझे मतलब सबसे ज्यादा मजा आता था। एंड अपन सारे फ्रेंड्स मिलके जो क्वेश्चन नहीं हो रहा, साथ में 6-7 लोग बैठ के एक साथ डिस्कशन करते थे, ऐसा कर लो, वैसा कर लो, ये भी हो सकता है, वो भी हो सकता है। एंड इस डिस्कशन से बहुत फायदा हुआ। फिजिक्स में एआर आते थे एंड हम दोस्त मिलके एक दूसरे को नेट से कुछ भी रैंडम पढ़ के, मॉडर्न एंड सेमीकंडक्टर्स के बारे में पढ़ के एक दूसरे को एआर्स पूछते थे। तो आई रिमेम्बर के लास्ट के 2 वीक में हमने ऐसा करा, 2-3 वीक में एम्स से पहले। एंड वो जो हमने पूछे थे उससे एक एआर मेरे पेपर में आया एंड मेरे एक फ्रेंड के पेपर में उससे 3 एआर आ गए। 3 क्वेश्चन जो हमको नहीं आते थे वो सिर्फ उस डिस्कशन से डेली आधा 1 घंटे से कवर हो गए। तो आपको एनसीईआरटी से थोड़ा सा ही बाहर निकलना है। इंटरनेट इज अ वेरी गुड सोर्स, बस आपको ढंग से ढूंढना आना चाहिए। एंड ढूंढना आपको कोई सिखाएगा नहीं, आपको खुद एक्सप्लोर करना है। और आपको 2-3 महीने में खुद से लगने लगेगा कि हाँ मैं सही जगह ढूंढ रहा हूँ, कॉन्फिडेंस आ जाएगा। बट खुद से करके देखना है, आपको कोई सिखा नहीं सकता ये चीज। ओके, तो हार्दिक, यू हैव अचीव्ड अ लॉट, बी इट इन नीट, बी इट इन ऑन एम्स, या फिर एक नेशनल लेवल पे अगर मैं बायोलॉजी ओलंपियाड की बात करूं, बहुत बड़ी बात होती है। कभी ऐसा मतलब व्हाट वाज योर बिगेस्ट मोटिवेटर कि यू कैन बी एबल टू डू इट? वाज इट जस्ट मतलब अंदर ही अंदर से खुद को मोटिवेट कर रहे थे, या फिर there was something, or it can be a thought, it can be an idea, it can be a person? What was the thing that motivated you throughout the journey? दो चीजें थी। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए आई वाज कि हाँ मुझे एम्स पहुंचना ही पहुंचना है। मतलब ठीक है, अगर नहीं पहुंचता तो शायद मुझे काफी बुरा लगता, बिकॉज आई वाज नॉट अटैच्ड टू कि मतलब इट वाज नॉट लाइक एक सपना है कि हाँ, मतलब सपना था, पहुंचना था, बट इट वाज मोर लाइक कि आई डिजर्व टू गेट इन एम्स, मतलब मुझे जाना है। You started from 10th, of course you deserved it. मतलब वो रैंडम सोर्सेज उठा लेंगे, कॉलेज की बुक्स उठा लेंगे, बट आपको इधर उधर इतना नहीं भटकना है। एंड आप एग्जाम को क्रैक करने की कोशिश करने की जगह सिर्फ नॉलेज पे फोकस ज्यादा करोगे तो एग्जाम अपने आप क्रैक हो जाएगा। एग्जामिनर क्वेश्चन डाल रहा है ये देखने के लिए कि आपको कितना आता है, एंड आप एग्जामिनर से मजे ले रहे हो, क्योंकि आप क्या करते हो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन याद कर लिया आपने, कोचिंग में जो लिखा है वो याद कर लिया। तो आप एग्जामिनर से ऐसे मजे लेने की जगह अगर आप सिर्फ नॉलेज पे भी फोकस करो, और जो एग्जामिनर चाहता है कि आपको नॉलेज मिल जाए उतना काम कर लो। एग्जामिनर ये चाहता है आप पे नॉलेज हो, एंड आप अच्छे से पढ़ाई करके नॉलेज कलेक्ट कर लो, तो भी आपका पेपर बहुत अच्छे से हो जाएगा। एंड ज्यादा इसके लिए कहीं जाना नहीं है, एनसीईआरटी एंड उसके थोड़ा इधर उधर। Now if I'm preparing for NEET, I obviously want to know how an examiner thinks. तो PYQs जो previous year question papers होते हैं, do you think they are helpful in decoding के examiner कैसे सोचता है उसके हिसाब से? I think कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जानबूझ के रिपीट होते हैं। मतलब एक एग्जामिनर ये चाहता है कि वो ये देखे कि बच्चा इतना एग्जाम फोकस तो था ना कि उसने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करे। सिर्फ ये देखने के लिए वो क्वेश्चन रिपीट होते हैं, ना कि इसलिए नहीं होते कि एग्जामिनर पे क्वेश्चन नहीं है। और एग्जामिनर चाहे तो आपसे बहुत कुछ पूछ सकता है, एग्जामिनर बहुत होशियार बंदा है, बट जानबूझ के क्वेश्चन रिपीट करता है ये देखने के लिए कि बच्चे ने कितना पेपर स्टडी करा है, कितना प्रीवियस पेपर रिवाइज करे हैं। एंड यही अब एग्जामिनर ये करना चाह रहा है तो आपको भी फिर करना पड़ेगा, इसलिए आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखने पड़ेंगे। बट यू कैन नॉट टोटली रिलाई ऑन कि बस मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लूंगा एंड सिलेक्ट हो जाऊंगा। दैट इज मतलब ऐसा नहीं होगा, आपको पढ़ना भी पड़ेगा, कॉन्सेप्ट क्लियर रखने पड़ेंगे। हो सकता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो बट वैल्यूज चेंज हो जाए, तो ऐसा नहीं है, आपको आना चाहिए। सिर्फ क्वेश्चंस करने से फायदा नहीं है, कॉन्सेप्ट भी आना चाहिए। Okay. Enough with the fancy talk. Matlab, you have achieved a lot, let me tell you that, and I'm very proud of you for doing all of that you were able to achieve in such short period of time. लेकिन कभी तो होगा ना हार्दिक कि ऐसा लगा हो कि ये तो बहुत ही ज्यादा मतलब पिट स्टॉप आ चुका है, आई डोंट नो कि अब यहाँ से कैसे उठे, ऐसा कभी कोई इंसिडेंस? हाँ, आई विल टेल यू। मतलब ऐसा कोई इंसिडेंस नहीं है, बट मतलब ऐसे लोग जनरली बोलते नहीं है, बट आई विल टेल के मतलब ऐसा काफी बार हुआ है कि मैं खाली बैठे बैठे रूम में रोने लगा एंड आई वाज लाइक कि हाँ भाई अब नहीं पढ़ना, बहुत थक गया। एंड मैं पेरेंट्स को बोल रहा हूँ कि यार अब मन नहीं कर रहा। तो
मतलब उस पॉइंट पे आके मतलब लोग ऐसे बोलते नहीं है, मतलब टॉपर्स लोग के मैं खाली बैठे बैठे रोता रहता था, स्पेशली बॉयज तो कम ही बोलते होंगे, बट मतलब मैं एक्सेप्ट करता हूँ। बट देन उसमें बात ये थी कि मतलब व्हाट आई थॉट वाज कि मैं नीट की तैयारी सिर्फ इसलिए कर रहा हूँ, नीट एंड एम्स की, कि मुझे फ्यूचर में खुशी मिले। लाइक फाइनल टारगेट हमारा क्या है कि हम मतलब अच्छे डॉक्टर बने, पैसा कमाए, खुश रहें। दिस इज मतलब एक टारगेट प्रोसेस हो जाता है। एंड अगर आप उसकी तैयारी करते हुए भी खुश नहीं हो तो फिर क्या फायदा उसकी तैयारी करने का, राइट? तो आई वाज ऑलवेज कि अगर मैं दुखी हो रहा हूँ तो देयर इज सम प्रॉब्लम इन माय मेथड्स। मुझे बहुत बार ऐसा जैसे लाइक एक स्टार्टिंग में मैं टीचर्स को बहुत फॉलो करता था, जैसे कोचिंग टीचर ने जैसा बोला वैसे ही पढ़ने का, जैसा उसने बोला वैसे ही उसी तरीके को फॉलो करने का। बट आफ्टर मतलब सबसे पहली बार जब मैं बहुत दुखी हुआ तो आई रियलाइज कि कोचिंग टीचर जैसा बोले वो एक मास के लिए बोल रहा है, ठीक है? वो एक ऐसी चीज बोल रहा है जो शायद 100 में से 50 लोगों पे अप्लाई होगी, बट बाकी 50 पे नहीं होगी, ठीक है? ही कैन नॉट से 10 चीजें नहीं बोल सकता, फिर 100 के 100 कंफ्यूज हो जाएंगे। तो ही विल से व्हाट विल बी एप्लीकेबल टू अ मेजॉरिटी ऑफ पीपल। बट जो 40-50 बच्चे बच गए उनको फिर अपने आप से भी देखना पड़ेगा कि उनके लिए क्या बेस्ट सूट करता है। मतलब मुझे बहुत ज्यादा सूट नहीं करता था कि मैं सिर्फ जो बुक दी है वो ही पढूं, जो टेस्ट है उसके लिए ही प्रिपेयर करूं। लाइक फॉर आई गिव एन एग्जांपल, जो मेरी कोचिंग थी उसके टेस्ट में मैं कभी भी जो हमारा सिलेबस के टेस्ट होते थे मैं उसमें आज तक कभी भी फर्स्ट नहीं आया। आई वाज ऑलवेज या तो सेकंड या थर्ड, कभी भी फर्स्ट नहीं आता था, बिकॉज मैं कोचिंग मॉड्यूल्स बिल्कुल रट के नहीं जाता था, कभी भी एनसीईआरटी को बिल्कुल रट के नहीं जाता था, तो मेरे 1-2 क्वेश्चन गलत हो ही जाते थे। बट और मेरे फ्रेंड्स इसके लिए मुझे डांटते थे कि देखो तुम्हारा ये दोस्त फर्स्ट आ रहा है, ये फर्स्ट आ रहा है, तुम फर्स्ट कैसे नहीं आ रहे हो। एंड इवन दो एक रात पहले मैंने ही उनको डाउट सॉल्व कराए होंगे, बट बात ये होती थी कि तुम फर्स्ट क्यों नहीं आ रहे हो। बट आई वाज कि हाँ मुझे उनकी तरीके से नहीं पढ़ना, कोचिंग के टेस्ट में फर्स्ट आके कोई फायदा नहीं है, मुझको एम्स पहुंचना है एंड मैं अपने हिसाब से पढ़ाई करूंगा। तो दिस वाज समथिंग। और मतलब बहुत ज्यादा बर्नआउट्स होते थे, तो बहुत बार होता था कि मैं 3-4 दिन तक किताब छुई नहीं, बस कोचिंग जाके आगे घर आके रेस्ट करा, सोचते रहे भले ही कुछ भी, या फिर यूट्यूब पे वीडियोस देख ली, टाइम पास कर लिया, बट रिलैक्स करना। एंड रिलैक्स करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब इवन फॉर अ ड्रॉपर 1 साल लगता है कि हाँ सिर्फ 1 साल ही एग्जाम है, बट 1 साल इज अ लॉट ऑफ टाइम। अगर आप मेंटली फटीग हो तो फिर आप 1-2 दिन रेस्ट कर सकते हो, अगर आप बर्नड आउट हो तो आप रेस्ट कर सकते हो, यू आर एलिजिबल फॉर दैट रेस्ट। आप शांत हो जाओ, घूमने चले जाओ। मतलब मैं 2-3 बार तो घूमने भी गया हूँ अपनी बीच प्रिपरेशन के, कोचिंग छोड़ के फैमिली के साथ घूमने चले गए, ठीक है? जाने तो एक चैप्टर छूट जाएगा, बाद में वापस से पढ़ लेंगे, कोई बात नहीं। बट मेंटली आपको मतलब फिट होना भी जरूरी है। मतलब आप प्रिपरेशन जब कर रहे हो तब आप फुली कॉन्सेंट्रेटेड हो, ऐसा नहीं हो कि आप 50-50 नहीं होने चाहिए, या तो ढंग से पढ़ो या ढंग से रेस्ट करो। तो दिस वाज ऑलवेज माय थिंग। तो व्यूअर्स यू कैन सी कि हार्दिक ने हमेशा यही फोकस किया है कि ही फोकसेस ऑन द बिगर पिक्चर, यू नो, कि तो आई वांट यू टू टेक दिस एडवाइस फ्रॉम हिम, लुक एट द बिगर पिक्चर। और जब भी इस तरीके से छोटे छोटे स्टॉप्स ऐसे आए, व्हेन यू थिंक दैट इट वोंट बी पॉसिबल फॉर यू, you just do what Hardik did and do wondrous things. Okay, Hardik, अभी कैसा लग रहा है? Like you are an AIIMS, AIIMS में हो आप, लेकिन लॉकडाउन की वजह से अब now everything, मतलब you are at home due to the. हाँ, How does it feel? Because of the lockdown, but हाँ अभी ऑलमोस्ट अराउंड 8-9 मंथ से एम्स में ही थे। लॉकडाउन की वजह से घर आ गए एंड हमारा पूरा सिलेबस ऑनलाइन हमको पढ़ाया गया। मेडिकल सिलेबस ऑनलाइन पढ़ाना थोड़ा ट्रिकी हो जाता है, राइट? 11-12 की प्रिपरेशन तो ऑनलाइन आराम से हो सकती है आई फील, बट मतलब मेडिकल कॉलेज में थोड़ा सा प्रैक्टिकल बेस्ड अप्रोच ज्यादा होता है। तो अब ऑनलाइन हमारा कोर्स चल रहा है, वो खत्म हो गया अब तो, एंड हमारे एग्जाम्स होने वाले हैं, अराउंड 1 मंथ में एग्जाम्स हैं हमारे, फर्स्ट प्रोफेशनल एग्जाम्स। एंड उसके लिए लाइक मतलब काफी सिलेबस होता है, काफी डरा हुआ मतलब हाँ दैट इज डिफिकल्ट। हाँ, एम्स में लाइफ कैसी है? लाइक सारे के सारे बच्चे बहुत ही ज्यादा पढ़ने वाले, दे आर नेवर चिलिंग विद एनीवन। कैसा, मतलब आई डोंट नो हाउ इट इज, यू हैव बीन देयर, सो आई वांट यू टू कमेंट ऑन इट। लोग नॉर्मल है वहां पर कि बहुत सुपर जीनियस है? एक्चुअली मुझे भी पहले लगता था कि ऐसा होगा कि बहुत ज्यादा कंपटीशन होगा, कि पढ़ने वाले हैं, मतलब टॉप 100 बच्चे हैं इंडिया के, राइट? बट
ऐसा नहीं है, सब लोग काफी चिल्ड आउट हैं, मजे में हैं, ठीक है, सब पहुंच गए हैं, अपना पढ़ना है, अच्छा डॉक्टर बनना है, बट आपस में इतनी लड़ाई नहीं है, आपस में मारा मारी नहीं है जैसा कोचिंग में होता था कि तेरे 1 नंबर ज्यादा आ गया, मेरा 1 नंबर ज्यादा आ गया, वो वाली चीज कभी नहीं होती यहाँ पे। इट इज ऑलवेज रिलैक्स्ड एंड अच्छे से पढ़ाई होती है, पूरे मजे होते हैं। एंड मतलब एम्स इज, मतलब आप कभी कभी सोचोगे कि एम्स इज वेरी सिमिलर टू अदर कॉलेजेस क्योंकि सिलेबस वही है, बुक्स वही है, बट देन देयर आर टाइम्स जब आपको लगेगा कि हाँ एम्स इज रियली डिफरेंट, जब आपको रिसर्च अपॉर्चुनिटीज प्रेजेंट होंगी, जब कोई टॉक सीरीज होगी, जब कोई फेमस बंदा एम्स में आके स्पीच देगा, तब आप बैठे आपको लगेगा कि हाँ मतलब एम्स में पहुंचना बड़ी बात है, क्योंकि आई एम एलिजिबल टू हियर दिस पर्सन ओनली बिकॉज आई एम एट एम्स। एंड सिमिलर फॉर लाइक हमारे जो प्रोफेसर्स हैं, बहुत सारे प्रोफेसर्स ने वो बुक्स लिखी हैं जो हम पढ़ते हैं, तो इट इज अ बिग डील। इसको इमेजिन ऐसे कर सकते हो कि अगर आप बोलो कि अगर हम एच.सी. वर्मा से, कोई बंदा एच.सी. वर्मा से फिजिक्स पढ़ रहा है बिकॉज एच.सी. वर्मा इज अ फेमस बुक, तो उसको कितना अच्छा लगेगा। इट इज ऑलमोस्ट सिमिलर कि जिसने हमारी बुक लिखी है हम उसी से पढ़ रहे हैं, तो दिस इज अ एक्सपीरियंस जो आपको एक अच्छे कॉलेज में जाके ही मिल सकता है। Like So you must be missing AIIMS a lot because अभी लॉकडाउन है and अभी आपने ऑनलाइन टीचिंग भी शुरू की अभी कुछ महीनों में, क्या एक्सपीरियंस रहा है? लाइक फॉर मिसिंग एम्स, एक्चुअली जब लॉकडाउन स्टार्ट हुआ था तब हमारे एग्जाम्स चल रहे थे एंड वी वर ऑल वेरी ईगर कि बस लॉकडाउन हो जाए और हमारे एग्जाम्स रुक जाए बीच में। आने की तो जितनी जल्दी थी हम लोग आगे लौट के, बट एक बार आप घर पे आके 10-15 दिन निकल गए ना, उसके बाद एवरीवन इज लाइक वापस ले चलो हमको, बिकॉज वी आर मिसिंग ईच अदर। हम लोग एक फैमिली बन गए हैं सारे बैचमेट्स एंड मतलब वो वी आर मिसिंग अ लॉट, बट देन सिचुएशन भी थोड़ी खराब ही है, देन वी कैन नॉट लाइक हम जाएंगे तो वी आर एट इंक्रीज रिस्क ऑफ गेटिंग इन्फेक्टेड, तो फिर वो वाली चीज भी रहती है, तो वी आर स्टक एट होम फॉर नाउ। एंड क्योंकि लाइक फॉर 2 months, अब 2 महीने हो गए एंड आई वाज स्टक एट होम, तो आई थॉट कि स्टूडेंट्स को पढ़ाना वुड बी अ गुड आइडिया, सो आई जॉइंड एन अकेडमी एज अ एजुकेटर। तो अभी मैं बायोलॉजी पढ़ा रहा हूँ, आई टीच ह्यूमन फिजियोलॉजी बिकॉज आई फील कि MBBS में ह्यूमन फिजियोलॉजी ज्यादा पढ़ी है मैंने एंड बायो ओलंपियाड भी क्लियर करा है, तो आई हैव अ गुड आइडिया कि ह्यूमन फिजियोलॉजी में क्या एक्स्ट्रा मैं बता सकता हूँ लोगों को। Thank you so much, Hardik, for all of the valuable advices that you gave to the students who will be viewing this video. And I am sure कि वो अपनी daily practice में वो इस चीज को, इन सारी चीजों को include करेंगे and they will be able to achieve the things like you did. तो mood को थोड़ा सा lighten up करते हैं. How about having a rapid fire round? Would you like it? Yeah, sure. Okay, question number 1. Yes. What are you most excited about these days? About my prof exams. Not excited, but it is on my mind. Tea or coffee? Coffee. Superman or Iron Man? Iron Man. Thank you. Okay, what was your favorite subject in school? Physics, and I liked art very much, art and craft. Okay. What is the habit that you picked during the quarantine and you are not very proud about? I haven't been exercising very much, like बिस्तर पे ही पड़ा हुआ हूँ बहुत दिनों से, and it would be like this if this thing goes on and on. Okay. If you were a superhero, who would you be? And it cannot be Iron Man because you already named him. Any superhero? I think I might be Doctor Strange. Okay, and why is that? I like the whole idea of going through time and then he can appear anywhere, and that, like, I like the concept, and I also like the actor. That's why. Okay, Hardik, those were some really amazing answers. So we have a ritual on our show that whenever a topper comes, we ask him or her to tag another topper for the next interview. So anyone from the top of your head? I would like to tag AIIMS Bhaiya. He was like my roommate, just बगल वाले room में रहता था in my hostel for my preparation, and he is currently also now in AIIMS. So we were like very good friends, and अब दोनों साथ में AIIMS में ही हैं. And his rank was 22 in AIIMS, and my rank was 22 in NEET. So like I feel we are very good friends, and I would tag him. Okay, Aryaman, you can expect a call from us very soon.
तो Hardik, we are coming towards the end of this interview. So any one thing that, because now you have the opportunity to reach out to a lot and lot of people. कोई एक ऐसी चीज जो तुम बताना चाहोगे किसी भी ऑडियंस को, कोई भी ऑडियंस को जो अभी फिलहाल ये हमारा शो देख रहा है? Like I would like to give one advice कि students realize and accept where they stand. Like अगर किसी स्टूडेंट के 300 मार्क आ रहे हैं या 500 मार्क आ रहे हैं या 700 मार्क्स आ रहे हैं, he should accept कि वो अभी कहाँ पे है and then try to improve. अगर किसी के कम आ रहे हैं and then he tries to copy कि मैं कुछ difficult करता हूँ, मैं ये भी करता हूँ, तो it will not be worth it. And जिसके ज्यादा आ रहे हैं वो कम वाले को follow करे. So this kind of thing will not be worth your time. So you should realize where you stand and then also accept कि आप कहाँ पर हो and then try to improve upon that. And then finally you can always get better. But for that you have to realize कि आप अभी कहाँ पर हो. So this is one thing that I would like to tell each and everyone watching this video. So viewers, as you can see कि अभी हार्दिक ने बोला है कि self analyzing, then self accepting and then self improving is the key of improvement, or to lead a life like Hardik is right now, which is a great one, Hardik. So thank you so much for this interview. I hope that you enjoyed the time with us. Thank you. Yes, I enjoyed it a lot. काफी मजा आया and I really love sharing my experiences and ये इंटरव्यू भी थोड़ा अलग स्टाइल का था and I liked it very much. वरना जनरली यही होता है कि ये पढ़ लो वो पढ़ लो and इंटरव्यू खत्म हो जाता है. But I like this format जब मैंने अपने personal experiences share करे and it was a lot. So, we are very happy to know that. Thank you, Hardik, for your precious time. To life and freedom.